आम आदमी पार्टीक समर्थन करा बा आम आदमी पार्टीक ভাল পোৱা প্ৰতিগৰাকীৰ বাবে এয়া এক ডাঙৰ খবৰ, এয়া এক ভাল খবৰ। যিটো সময়ত বিজেপিয়ে মুখ ঠেকেচা খাইছে সেইটো সময়তে আম আদমি পাৰ্টিৰ জয় জয়কাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত। এইবাৰ দিল্লীত পুনৰ মেয়ৰ পদত অধিষ্ঠিত হ'ল আম আদমি পাৰ্টিৰ চেলি অবেৰয়। লগে লগে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা হাহাকাৰ লাগিছে। প্ৰতিগৰাকীয়ে কৈছে যে 2024 সমাগত আৰু তাৰ পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কৰবাত কংগ্ৰেছ আৰু কৰবাত আপে এটা বিজয় ধ্বজা উৰুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে। 2024 তাৰে এই খবৰ। দিল্লীৰ মেয়ৰ পদত অধিষ্ঠিত চেলি অবেৰয়। এই মুহূৰ্তৰ এক ডাঙৰ খবৰ। দিল্লীৰ মেয়ৰ পদত অধিষ্ঠিত চেলি অবেৰয় বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাই মেয়ৰ নিৰ্বাচিত আম আদমি পাৰ্টিৰ চেলি অবেৰয়। প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ পূৰ্বে বিজেপিয়ে প্ৰত্যাহাৰ কৰে প্ৰাৰ্থিত্ব আৰু এয়াই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়লৈ ৰূপান্তৰিত হয়। আপৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হৈছিল বিজেপিৰ কৈলাশ শিখৰ ৰায় আৰু কৈলাশ শিখৰ ৰায়ে তাৰ পিছতে নিজৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰে। মেয়ৰ আৰু ডেপুটি মেয়ৰৰ বাবে এমচিডিত যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাত এতিয়া আম আদমি পাৰ্টিৰ জয় জয়কাৰ। দিল্লীৰ মেয়ৰ পদত অধিষ্ঠিত চেলি অবেৰয় বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাই মেয়ৰ নিৰ্বাচিত আম আদমি পাৰ্টিৰ চেলি অবেৰয়। প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ পূৰ্বে বিজেপিয়ে প্ৰত্যাহাৰ কৰে প্ৰাৰ্থিত্ব আৰু তাৰ পিছতে হাহাকাৰ লাগিছিল। আপৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হৈছিল বিজেপিৰ কৈলাশ শিখৰ ৰায়। মেয়ৰ আৰু ডেপুটি মেয়ৰৰ বাবে এমচিডি নিৰ্বাচনৰ গোপন ভোটাধিকাৰৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত হয় আৰু এই মুহূৰ্তৰ এক ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছো। এয়া হৈছে চেলি অবেৰয় আৰু চেলি অবেৰয় পুনৰ অধিষ্ঠিত হৈছে দিল্লীৰ মেয়ৰ পদত। কালি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল TV9 কানাড়াৰ চি ভোটাৰৰ তালিকা আহিছিল আৰু চি ভোটাৰে এক সমীক্ষা প্ৰকাশ কৰিছিল য'ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে কংগ্ৰেছৰ বাবে তেওঁলোকে আশা সুন্দৰ বুলি কৈছিল, অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছে পুনৰ হয়তো চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰে কৰ্ণাটকত, য'ত বিজেপিয়ে 79ৰ পৰা 89ৰ ভিতৰত আসন লাভ কৰিব বুলি কোৱা হৈছিল আৰু কংগ্ৰেছে 117 to 127ৰ ভিতৰত আসন লাভ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছিল। এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আম আদমি পাৰ্টিক পুনৰ জয়ী হোৱা আৰু আম আদমি পাৰ্টিক যিসকলে সমৰ্থন কৰে বা যিসকলে আম আদমি পাৰ্টিক প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে সমৰ্থন আগবঢ়াই আহিছে তেওঁলোকৰ বাবে এয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, তেওঁলোকৰ বাবে এয়া ডাঙৰ খবৰ, কাৰণ দিল্লীৰ মেয়ৰ পদত পুনৰ অধিষ্ঠিত হৈছে চেলি অবেৰয়। दिल्ली नगर निगम में दूसरी बार मेयर का चुनाव हुआ। 4 दिसंबर जब से चुनाव हुआ था सबके सामने है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली नगर निगम के चुनाव में विजय रही। भारतीय जनता पार्टी का 15 साल का शासन खत्म हुआ, मगर 4 दिसंबर से आज तक भारतीय जनता पार्टी ये बात कहती आ रही है कि मेयर तो हम बनाएंगे। कल तक भी भारतीय जनता पार्टी कह रही थी मेजॉरिटी आम आदमी पार्टी के पास है मगर मेयर भारतीय जनता पार्टी की बनेंगी। हालांकि ये सबके लिए स्पष्ट है कि उनके पास नंबर नहीं है, मगर आखिरी मौके पे उन्होंने अपनी तरफ से एक मेयर की कैंडिडेट का नामांकन कराया। सवाल हुआ क्यों कराया? इसी जगह 3 दिन पुरानी बात है, मुझसे पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारे पास नंबर्स हैं, आम आदमी पार्टी के कई पार्षद भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट डालेंगे। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ के अंदर लगी हुई थी। पिछले मेयर से चुनाव से पहले भी वो जोड़ तोड़ में लगे रहे। हमने कई बार आके मीडिया को बताया और आज चुनाव से पहले जिस तरीके से चुनाव से भागे हैं, सरेंडर करके भागे हैं, इससे पता चलता है भारतीय जनता पार्टी के घर में कुछ गड़बड़ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 104 भी वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ने वाले थे और सारी दिल्ली के सामने भारतीय जनता पार्टी की पोल खुलने वाली थी और इस डर से भारतीय जनता पार्टी ने सरेंडर कर दिया। या तो लड़ते नहीं और लड़ रहे हो तो युद्ध से भागते नहीं। ये कैसी बात हुई? लड़ाई भी करेंगे, युद्ध भी करेंगे, बोल रहे हम जीतेंगे और फिर युद्ध से भाग गए, तो बहुत शर्म की बात है।
मुझे लगता है ये तो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली इकाई ने पूरी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय इकाई की नाक कटवा दी आज कि वो युद्ध से भाग खड़े हुए। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि दोबारा से उन्होंने मुझे आज मेयर कैंडिडेट नॉमिनेट किया था और साथ ही समस्त पार्षद, जितने भी विधायक हैं, नॉमिनेटेड विधायक, साथ में जितने भी सांसद, दिल्ली की जनता, सबका धन्यवाद करना चाहूँगी और सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आज एक बार फिर से मुझे महापौर बनने का मौका दिया। दिल्ली की जनता ने जो सपने देखे हैं, जो दिल्ली की जनता को हमने उम्मीदें दिखाई हैं, उन सब को पूरा करने के लिए ये जिम्मेदारी आज दोबारा से मिली है। और साथ ही मैं आप सबको आश्वासन देती हूँ, दिल्ली की जनता को आश्वासन देती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को आश्वासन देती हूँ कि जो जिम्मेदारी आज फिर से दोबारा मिली है और जैसे अभी तक ईमानदारी से और साफ नीयत से मैं नगर निगम के कामों को करती आई हूँ, वैसे ही नगर निगम के कामों को करती रहूँगी। साथ ही जो सपने हैं दिल्ली की जनता के, अच्छे स्कूल के, अच्छे अस्पताल के, अच्छी सड़कों के, अच्छे पार्क के, कर्मचारियों के जो भी मुद्दे हैं, उनकी तनख्वाह को लेकर, उनको रेगुलराइज करने को लेकर, उन सब मुद्दों पर हम ईमानदारी से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जो विजन है उस पर हम पूरी निष्ठा से और ईमानदारी से हम सब मिलकर काम करेंगे और राजनीति से ऊपर उठकर निष्पक्ष तरीके से मैं आपको ये भी आश्वासन देती हूँ कि सदन को चलाएंगे, संवैधानिक रूप से हम सदन को चलाएंगे। और एक बार फिर से बहुत बहुत आप सबका आभार।